Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's continue the lectures for differentiation of a function. Differentiation of a function. So we will first define how to find out the derivative of a function, and then we will prove certain properties of functions, and we will also do some of the examples as well. Consider a real valued function. Consider a real valued function f, function f. We can define or we define simply, we define the derivative of f by the following, limit h tends to 0 of f of x plus h minus f of x divided by h. So this quantity is called the derivative of f. Or sometimes we represent this by even df by dx, or even sometimes we write dy by dx, or even sometimes we write y prime. So these are just the notations. Even sometimes you can also represent d of f. So it's these are the different ways of writing down the derivative of function, but the definition is given by this quantity, this one. And I will also mention this point that for some books they don't use this h, but they use f of x plus delta x. So they define this way: delta x goes to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. And they said this is the derivative of the function. So either you use this delta x or h, so these are both the same things. Exactly. Right. Of course, this derivative is said to exist. ये derivative कब exist करेगा? This derivative is said to exist. So we say that f prime at x exists if this limit, let me say this, 1, if the limit in 1 exists. So if this limit exists, then we say that this quantity will give you the derivative of the function. For all x, this limit should exist. If this exists, then we will say that this is the derivative. So without kind of any delay, we gonna do some of the very interesting examples for the derivatives, in which we will first discuss very simplest kind of function, which is the constant function. So what should be the derivative of a constant function? If we say f of x is constant, that means c. So what is going to be my f of x plus h? This should also be c because there is no x. So if we find out its derivative of f of x, or we can say that derivative of f of x by dx, the df by dx, it's not really by, so it's like derivative of f. So ये बन जाएगा हमारा limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x, and all of this is divided by h. So now you can substitute the value. So this is c, this is also c, divided by h. So we have limit h tends to 0, 0 over h, which is 0.
So this is going to be 0. So we can say that the derivative of a constant c is always 0. This constant can be any number, any real number. Let's say derivative of 100. So this should also be 0 because it's constant. Similarly, derivative of pi with respect to x should also be 0 because pi is a constant number. The derivative of just e should also be 0. So because these are constant numbers. What next? So next should be the simplest polynomial function, which is our favorite f of x to be x. So we're gonna see now what is going to be the derivative of function f of x equal to x. So we need to compute f of x plus h. This should be equal to x plus h because we will replace this x by x plus h. So the derivative of this function or derivative of this x, we can also say that derivative of this x should be equal to limit h tends to 0 of f of x plus h minus f of x divided by h. Or we can insert the value, uh, this x plus h is x plus h minus x, this value and this value, so divide by h, and you can simplify this to get limit h tends to 0 of 1, so which is 1. So the derivative of x is 1. So we can say that the derivative of x should be equal to 1. One more thing जहां पर ये बताना लाजमी समझूंगा, ये जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की है ना, ये दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो हमने डिफाइन की है लिमिट के टर्म्स में h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइड बाय h, हम इसको कहते हैं ये डेरिवेटिव, जब हम इस प्रोसेस से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं बाय लिमिट प्रोसेस, ऐसे भी कहते हैं, या हम ये भी कहते हैं कि ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं बाय डेफिनेशन। तो अगर बाय डेफिनेशन कहा जाएगा तब भी आप ये प्रोसेस करेंगे, या समटाइम्स कहा जाता है बाय ए बी इनिशियो मेथड। तो ए बी इनिशियो मेथड का मतलब भी सेम है कि आप जो है वो इस प्रोसेस से करें, या समटाइम्स हम कहते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहे हैं तब भी आपका मतलब है कि आप ये प्रोसेस यूज करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। ये जस्ट पॉइंट था सिमाल, बीच में रिमार्क था देने के लिए। अगली बात कर लेते हैं ना। सो अगर हम अब कंसीडर करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? सो वी नीड टू कंप्यूट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एंड दिस शुड बी एक्स प्लस एच का स्क्वायर। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव? और इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर। तो जो डेरिवेटिव होना चाहिए दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर का, वो बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और इस पूरे को डिवाइड कर दें h के साथ। तो ये बन जाना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, और फिर एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे h के साथ। तो अब जब सिंप्लीफिकेशंस करेंगे आप लोग, so this x square will get cancelled with this, and then you will simplify it a little more, so you will get limit h tends to 0 to be, ऊपर आप h कॉमन लें तो ये 2x प्लस h बन जाएगा, नीचे यहाँ h पड़ा हुआ है। तो फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये h इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2x प्लस h। अब इस x को तो लिमिट ने कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें h है ही नहीं, तो लिमिट सिर्फ h, इस h की जगह आएगी 2x प्लस 0 यानी कि 2x। तो इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर का वो बन जाएगा 2x।
यानी कि इस डिस्कशन का मतलब है कि आप डेरिवेटिव जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, राइट। सो यहाँ से एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये इन जनरल ट्रू है। इन जनरल ट्रू का मतलब है कि अगर आप कोई भी पावर एक्स के ऊपर रख देते हैं, चले इस तरह से कर लेते हैं, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं तो ये 1 आ रहा है, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 2x आ रहा है, और अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब करेंगे बाय डेफिनेशन तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। जब आप 4 पावर का करेंगे तो ये 4 आगे आ जाएगा और ये x पावर 3, ये सारे आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। इसको कंटिन्यू करते हुए अगर कहीं पर आप x पावर n का डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ऊपर वाली ये आगे आ जाएगी और x पावर n में से एक माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द पावर रूल। ये सिंपल पावर रूल है आपका। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। इसके प्रूव करने के लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत होती है, तो उसको एक और सेशन में मैं कर दूंगा, एंड आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस, जहाँ पर हम इसको ऑब्वियसली प्रूव करेंगे कि ये चीज़ हम प्रूव करेंगे कि फॉर एटलीस्ट द नेचुरल नंबर n, ये जो डेरिवेटिव x पावर n है ये बराबर होता है n टाइम्स x पावर n माइनस 1। अब इस फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन तो हम कर सकते हैं, यानी कि हम इसको अप्लाई तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर x पावर 200 है और इसका डेरिवेटिव आप निकाल, तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट ये 200 आगे ले आएंगे और 200 में से एक माइनस कर देंगे 199। ये जो पावर रूल है ना, ये इट्स ट्रू फॉर एनी एन रियल नंबर, यानी कि इसका मतलब है कि कहीं पर अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स पावर माइनस लेट से 1/2 का डेरिवेटिव, तो फिर भी ये ट्रू है। क्या करेंगे, आप -1/2 को आगे ले आएंगे और इस -1/2 में से -1 कर देंगे, सो ये -1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स पावर -3/2। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो ये फॉर एनी रियल नंबर n ये फार्मूला वर्कआउट करेगा, एंड वी कॉल दिस एज पावर। दिस इज सिंपल पावर रूल। इसका जनरल वर्जन भी होता है जो कि हम आगे चलकर देखेंगे। चलिए, अच्छा, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फॉर दैट आई नीड अ डिफरेंट वीडियो, वो भी मैं बना लेता हूँ। सो तब तक के लिए एक एग्जांपल कर देता हूँ। ये एग्जांपल अभी हम करने लगे हैं लिमिट बाय प्रोसेस से, यू नो डेरिवेटिव बाय लिमिट प्रोसेस। So I want to find out the derivative of this function f of x equal to x cube plus 2x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने लगा हूँ मैं, लेकिन ए बी इनिशियो मेथड यूज करूंगा, या बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो है वो लिमिट प्रोसेस के थ्रू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। So let's get started without, first we need to compute what? First we need to compute f of x plus h. So what is going to be f of x plus h? So f of x plus h should be, जहां पर x है वहां पर x plus h आ जाएगा, x plus h क्यूब प्लस 2 टाइम्स x plus h। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन करें जो कि है x क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब, ये इस फार्मूला को ओपन कर दिया मैंने, और उसके बाद आप इसको भी सिंप्लीफाई करके 2x प्लस 2h रख सकते हैं आप। अच्छा, अब आप जस्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लिमिट बाय डेफिनेशन वाला, तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन वाला, सॉरी। So the derivative of my this function, derivative of this f of x, or we can say that the derivative of this x cube plus 2x
this should be equal to limit h tends to 0 of f of x plus h minus f of x and all of this divided by h. So अब हम इसकी जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे. So limit h tends to 0. अब f of x plus h की जगह पर ये सारी वैल्यू आ जाएगी ना, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3x h² h क्यूब प्लस 2x प्लस 2h minus this function which is x क्यूब माइनस 2x. अब ये जो है ना एफ ऑफ एक्स की जगह पर रखकर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरे को जनाब हम डिवाइड करेंगे h के साथ और फिर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे. So far so good. Well, now you can cancel out wherever needed. So ये x क्यूब है और ये भी हमारे पास x क्यूब है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं. और इसके बाद ये 2x है, ये भी 2x है, ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं. So what we are left with, so let's see what we are left with. So हमारे पास लिमिट h tends to 0 और ये 3x² h बच जाता है, 3x h² बच जाता है, h क्यूब रह जाता है, प्लस का 2h रह जाता है, और इस पूरे को डिवाइड कर रहा है h. तो फाइनली हम h कॉमन ले सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में. अगर हम h कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 3x² प्लस 3xh प्लस h² प्लस 2 रह जाता है, और इस पूरे के नीचे h रह जाता है. तो अब हम फिर कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये h से कैंसिल आउट हो जाता है. सो वी आर फाइनली लेफ्ट विद दिस क्वांटिटी लिमिट h टेंड्स टू 0 of 3x² and then 3xh and then h² and plus 2. अब ये लिमिट जो है इन चार टर्म्स के ऊपर लग रही है. आप देख सकते हैं कि लिमिट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम करेगी जहाँ पर h है, और इसके ऊपर बाकी 3x² पर भी लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट का वेरिएबल h है. तो यहाँ पर जब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने से. तो बाकी आपके पास रह जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद एक तो 3x² रह जाएगा और दूसरा आपके पास 2 रह जाएगा. सो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इसके बराबर है 3x² प्लस 2 के. एंड ये जो है हमने सॉल्व किया है यूजिंग द सो कॉल्ड लिमिट प्रोसेस और डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या जिसको ab initio मेथड कहते हैं, या जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं.